This is Priyanka Bajpayee, and today I am going to deliver a lecture on the topic of a subject Human Resource Management. This is a subject of BBA 4th semester, and the code is Human Resource Management BBA 401. Okay, so before starting the topic, I just want to explain that what is the syllabus of this particular subject for Unit 1. So the syllabus is Unit 1, which is Unit 1 contains that nature and concept of human resource management, HRM, history, history of HRM. Then you have to understand the concept of personal management. Personal management is also a part of human resource management, students. So we have to understand that what is personal management, and then the next topic is human resource development. And as well as you also have to discuss the difference between human resource management and human resource development, as along with the similarities or characteristics of both these topics. Further, we have to understand that importance of HRM, what is the importance of human resource management, and what are the present day challenges of human resource management. Then understanding the present day scenario relating to the HRM, evaluation of HRM into strategic human resource management. So now you have to understand that you also have to learn the strategic human resource management. You also have the students, you also have to understand that what is strategic human resource management. Okay, the concept portion. Then one more topic is covered in Unit 1, which is human resource planning. In short, we can say it HRP, the process of human resource planning and also its limitations. Okay? तो बच्चों, अगर अब आप इसको समराइज वे में देखो तो आपको ये थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि यूनिट 1 में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे आपको इसमें कवर करने हैं. लाइक if you start with human resource management, which is HRM, then you have to understand the personal management, the second topic, and then move on the human resource development portion, which is HRD. In short, we can say it HRD. After that, importance, present day challenges, understanding the scenario of HRM, then evaluation of HRM strategies, and as along with strategic human resource मैनेजमेंट. उसी के साथ इस यूनिट में आपको एक टॉपिक और समझना है, विच इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है और उसका क्या प्रोसेस है ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड प्लानिंग्स को कंडक्ट करने का, एंड उसकी क्या लिमिटेशंस हैं. तो ये आपका सब्जेक्ट है जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि BBA 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है. कोड इसका 403 है. आई एम रिपीटिंग, BBA 403. इसके अंदर पहली यूनिट में आपको ये सारे बेसिक टॉपिक्स कवर करने हैं. ओके, सो वेरी फर्स्टली, लाइक द नेम सजेस्ट, सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है. व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. यहाँ पे अब अगर हम इसके कॉन्सेप्ट की बात करें तो HRM इज द प्रोसेस विच बाइंड्स पीपल विद ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्प्स बोथ people and organization to achieve each other's goal. Human resource management एक प्रोसेस है. दिस इज अ प्रोसेस, लाइक आप कह सकते हो कि ये कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है. दिस इज अ कंप्लीट प्रोसेस जो कि बांधता है, बाइंड करता है दो लोगों को एक साथ, लोगों को या दो एसोसिएशंस को एक साथ बांधता है, जिसमें कि आपके लोग होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन होती है. लोगों को और ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ लाना ताकि वो दोनों अपने अपने इंडिविजुअल गोल्स को अचीव कर सकें एक साथ मिलकर. इसी को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहा जाता है. अब देखिए बेटा, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर हम सिर्फ पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM के प्रॉपर कॉन्सेप्ट को समझिए. Human resource means those people who are working in the organization, and for the organization they all are their resources. Okay,
तो ह्यूमन रिसोर्स वो लोग होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए काम करते हैं, अपना एफर्ट देते हैं, अपनी नॉलेज इंक्लूड करते हैं, अपनी स्किल्स लगाते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के पर्टिकुलर गोल्स को अचीव किया जा सके अलॉन्ग विद देयर पर्सनल गोल्स। अब उन्हीं ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में सिंपल सी बात है, एक ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा। छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो कि मैम पीपल विद 2 और 3 ऑर्गेनाइजेशन विद 2 और 3 पीपल्स आल्सो हैव देयर ह्यूमन रिसोर्स, तो ठीक है, वहाँ पे की बात अलग है। लेकिन उन्हीं लोगों को मैनेज करना जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में साथ आकर काम कर रहे हैं, और इस बात को इंश्योर करना कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं, इसी को कहा जाता है मैनेजमेंट। तो जब आप ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करते हो तो वर्ड बनता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। गॉट इट? तो ये सिंपल सा फिनोमेना है। अब क्यों ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने की बारी आई? क्योंकि अगर आप अर्लियर टाइम की बात करो, थोड़ा सा अगर मैं बैक में जाऊँ, आपको याद दिलाऊं, तो पहले के समय में इतना ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स पे, मतलब पहली चीज़ तो इनको रिसोर्स कहा ही नहीं जाता था। सिंपल ये इनको कुछ मतलब एज अ मशीन देखा जाता था कि नाउ, मतलब जैसे मशीन में आप फ्यूल डालते जाते हो एंड वो वर्क करती जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन या जो टॉप अथॉरिटीज़ होते थे उनका यही मानना होता था कि भाई ह्यूमन रिसोर्स हैं, मतलब एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, उनको सैलरी मिल रही है इसलिए वो काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको सैलरी मिलती रहेगी, वो काम करते रहेंगे। तो उस समय लोगों की इतनी इम्पॉर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं समझी जाती थी। लेकिन जैसे धीरे 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 सिनेरियो चेंज हुआ, लाइक यू ऑल, मतलब आप सब इस चीज़ को समझ भी चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं। आपके जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पेपर आप पढ़ते हो बीबीए में फर्स्ट सेमेस्टर में, तो वहाँ पे इसको बहुत डीपली एक्सप्लेन भी किया गया है कि कैसे कैसे मैनेजमेंट का सिनेरियो बदला है फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। तो अगर आप वहाँ से समझ के आए हो तो किस तरीके से क्लासिकल अप्रोच के बाद न्यू क्लासिकल अप्रोच आई है, न्यू क्लासिकल अप्रोच के बाद फिर आपकी बिहेवियरल अप्रोच आई, या मॉडर्न सिनेरियो जो भी अभी चल रहा है, तो आप लोग समझ रहे होगे क्योंकि आप लोग ये सब्जेक्ट्स पहले पढ़ चुके हो बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर में। तो अभी उसी के कंटिन्यूएशन में जैसे आप देखते आए हो कि अब धीरे 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 क्या हुआ कि ह्यूमन्स को एज अ रिसोर्स देखा जाने लगा, ना कि एज अ मशीन। उन्हें एक रिसोर्स की तरीके से ट्रीट किया जाने लगा कि हाँ, यू are also very important for the organization like other resources. Other resources से मेरा मतलब जैसे capital, land और raw material, these are all are resources for the organization, same as the humans, the employees who are working in the organization are also treated as a human resource management, as a resource for the organization. और धीरे 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 फिर इसी की तरफ और ग्रोथ हुआ। तो ये समझा जाने लगा कि अगर हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को इफ़ेक्टिवली मैनेज कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करेगी। अगर एम्प्लॉय मैनेज्ड होंगे, ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से वर्क करेगी, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, क्योंकि एम्प्लॉयज़ की इफ़िशियंसी साथ ही साथ बढ़ती जाएगी। वहीं से ये कॉन्सेप्ट्स निकल के आए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, देन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ऑल, जो हम आगे इस यूनिट में कवर करेंगे। तो सिंपल सा कहने का मतलब यही था कि अब सिनेरियो चेंज हो चुका है। नाउ द ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड्स दैट द एम्प्लॉयज आर ऑल्सो दैट मच वैल्यूएबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन लाइक अदर रिसोर्सेज। दे ऑल्सो आर कम्स अंडर रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स वाई दे कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, एंड द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू मैनेज देम फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी, फॉर बेटर efficiency of the organization या efficiency of the work you can say। ठीक है, तो ये समझा गया कि ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और कोई भी काम, बेटा आप लोग भी जानते हो ये चीज़ बच्चों, किसी भी काम को अगर आप रैंडमली करते हो तब उसका क्या रिजल्ट आता है, एंड किसी भी काम को आप जब आप मैनेज्ड होके करते हो, मैनेज तरीके से करते हो, प्लानिंग करके करते हो, तो उसका क्या रिजल्ट आता है। और नो डाउट जब आप प्लान करके कुछ करते हो या मैनेज करके कुछ करते हो तो उसका रिजल्ट हमेशा बेटर ही आता है। तो सेम वो यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होता है।
कि अगर आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज्ड रखेंगे, आप मैनेजेबल तरीके से उनसे जॉब मतलब परफॉर्म करवाएंगे, तो नो डाउट कहीं ना कहीं उनका सेटिस्फैक्शन भी इंक्रीज होगा, उनकी इफ़िशियंसी भी इंक्रीज होगी, और इसका एट लास्ट इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ पे दिखाई देगा। क्लियर? तो इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एग्जिस्टेंस में आया। तो जैसे कि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देख रहे थे, तो पहली लाइन हमने जो पढ़ी कि HRM इज द प्रोसेस विच बाइंड्स पीपल विद ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्प बोथ पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव ईच अदर्स गोल। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, समझिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंबाइंड होकर वर्क करने के लिए मोटिवेट किया जाता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के भी अपने गोल्स अचीव हो सकें और एम्प्लॉयज़ के भी अपने गोल्स अचीव हो सकें। ठीक है। वेरियस पॉलिसीज, processes and practices are designed to help both employees and organizations to achieve their particular goal। अब सिंपल सी बात है बेटा, हम जब अब कह रहे हैं कि ये प्रोसेस है, तो जाहिर सी बात है जब ये प्रोसेस है तो इसके अंदर कुछ रूल्स होंगे, रेगुलेशन होंगे, किसी प्लानिंग के साथ इसको डिज़ाइन किया गया होगा। तो इन सब की हेल्प से क्या किया जाता है, एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा पाथ तैयार कर दिया जाता है जिस पे आगे बढ़ के ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ मैनेज्ड तरीके से अपने अपने गोल्स को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। ओके, फर्दर द प्रोसेस ऑफ हायरिंग एंड डेवलपिंग एम्प्लॉयज़ सो दैट दे बिकम मोर वैल्यूएबल टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाता है, एंड देन organization focuses on the development of the employees so that they become more valuable to the organization, they become more valuable assets to the organization। एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाता है, हायर किए जाने के बाद उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, उनके डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है। और किस लिए किया जाता है ये सारी चीज़ें, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक वैल्यूएबल रिसोर्स के तरीके से काम करें, या फिर वो एक वैल्यूएबल एसेट्स की तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ें और ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छी ग्रोथ प्रोवाइड करें। क्लियर? आई गेस इतना अभी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो फर्दर human resource process. Human resource management includes conducting job analysis, okay, and planning personal needs, recruiting the right person for the right job, orienting and training, managing wages and salaries, providing benefits and incentives, evaluating performance, resolving disputes, and communicating with all employees at all levels। ठीक है, देखिए हम बात कर रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस, राइट। अभी मैंने आपको बताया कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, तो सिंपल सी बात है, अगर ये प्रोसेस है तो इसके स्टेजेस भी होंगे। बिल्कुल आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक प्रोसेस है तो इसके स्टेजेस हैं। मैंने कहा बिल्कुल हैं। क्या स्टेजेस हैं? सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको जॉब एनालिसिस करना पड़ता है। तो यू कैन से द फर्स्ट स्टेप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस इज द जॉब एनालिसिस। जब आप जॉब एनालिसिस करते हो बेटा, ये सारी चीज़ें आगे की यूनिट्स में आपको डिटेल में डिस्कस करनी है, मतलब you can say all these things we will cover in further units। तो यहाँ पे मैं आपको अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रही हूँ, और इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट यूनिट्स में या आगे के कोर्स में, आगे के लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, पहला स्टेप होता है आपका जॉब एनालिसिस, देन प्लानिंग पर्सनल नीड्स। अब जब आप जॉब एनालाइज कर लेते हो तो आपको ये पता चलता है कि भाई आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके की पोस्ट के लिए एम्प्लॉय की हायरिंग करनी है, कौन सी पोस्ट वैकेंट हैं जिनके लिए आपको एम्प्लॉयज़ को हायर करना है, कौन सी ऐसी पोस्ट हैं जिस पे ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ हायर्ड हैं, या फिर किसका ट्रांसफ़र होने वाला है, किसका प्रमोशन होने वाला है, किसका रिटायरमेंट होने वाला है, कहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो सकती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलती है, आफ्टर कंडक्टिंग द जॉब एनालिसिस प्रोग्राम। ठीक, देन प्लान किया जाता है पर्सनल नीड्स। अब जब हमको ये पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है जॉब की ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बाद हम ये प्लान करते हैं कि कहाँ और कैसे, किस
वैकेंसी को फिल करना है, मतलब मतलब कहाँ कहाँ पे हमें एम्प्लॉयज़ की नीड है या हमें उन्हें हायर करना है, ये सारी चीज़ें, ये प्लानिंग की जाती है। देन आता है पार्ट रिक्रूटमेंट का। रिक्रूटमेंट मीन्स इनवाइटिंग द कैंडिडेट फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। ठीक है, आप एम्प्लॉय कैंडिडेट्स को, जो आपके कैंडिडेट्स हैं, जो सुटेबल कैंडिडेट हैं, उनको इनवाइट करते हो कि आप आइए और इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, वैकेंसी के लिए अप्लाई कीजिए। तो उन एप्लीकेंट्स को इनवाइट करना इज कॉल्ड अ रिक्रूटमेंट। ठीक है, जब एप्लीकेंट्स आ जाते हैं तब आता है पार्ट सिलेक्शन का। सिलेक्शन में क्या होता है? द ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू चूज द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट अ राइट टाइम। नाउ यू कैन यूज ऑल द मतलब लाइक इन कॉमास राइट वर्ड। वाई वी आर यूजिंग दिस वर्ड? बिकॉज अगर आपसे इन शॉर्ट, बेटा हम लोग ऐसे ही जनरली कहते थे कि जब हमें HRM पढ़ना है तो HRM इज बेसिक इन अ सिंपल वे, HRM इज अ right person at a right time on a right job for a right place। ठीक है, तो जब कोई इंसान सही वैकेंसी के लिए सही जगह पे हायर कर लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड आपका सिलेक्शन। बहुत सारी सीवीज आई रिक्रूटमेंट के थ्रू। अब उन सीवीज में से जो सही कैंडिडेट था, मतलब जो राइट कैंडिडेट था, जो नॉलेजेबल स्किल्ड कैंडिडेट था, जिसकी ऑर्गेनाइजेशन को नीड थी, ऑर्गेनाइजेशन ने उसको हायर कर लिया। आफ्टर दैट उसका ओरिएंटेशन होता है, ओरिएंटिंग प्रोग्राम कराया जाता है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम मीन्स कि अब नए एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ऑर्गेनाइजेशन को समझने का मौका दिया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाता है, समझाया जाता है कि हाँ क्या वर्किंग कंडीशंस हैं, कहाँ आपको काम करना है, कैसे कैसे आपको काम करना है, क्या आपकी ड्यूटीज़ होंगी, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। एंड अलॉन्ग विद दिस उनको क्या किया जाता है? ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, उसके बाद उनकी वेजेस एंड सैलरी डिसाइड होती है। सिंपल सी चीज़ है भाई, अब एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा तो उसको भी तो सैलरी या वेजेस कुछ मतलब पहले से ही सेट किए जाते हैं कि हाँ भाई आपको इतना सैलरी या वेजेस ऑफर किया जाएगा जिसके बिहाफ पे आपको अपनी सर्विसेज हमें डिलीवर करनी है। तो ये सैलरी और वेजेस सेट किए जाते हैं। प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स एंड इंसेंटिव्स, इसी के साथ साथ अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कराती हैं, इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराती हैं। जिस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग कंडीशन है, वो सारी चीज़ें एम्प्लॉयज़ को क्या की जाती हैं? एक्सप्लेन की जाती हैं। फिर उनकी परफॉर्मेंस को, अब जब एम्प्लॉय हायर हो गया है तो नो डाउट वो काम करेगा और उसके काम को धीरे धीरे क्या किया जाएगा? इवेल्युएट किया जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा। क्योंकि आप जानते हो कंट्रोलिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। अगर आप मैनेजमेंट पढ़ के आए हैं, अगर क्या आप तो पढ़ के आए बेटा, आप यू ऑल आर द 4 सेमेस्टर स्टूडेंट्स। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट 4 सेमेस्टर स्टूडेंट्स, तो आप सभी लोग BBA में फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर मैनेजमेंट क्या होता है बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अगर आप मैनेजमेंट जानते हैं तो आप मैनेजमेंट के फंक्शंस भी जानते हैं। लाइक क्या होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। लास्ट में आपका क्या आता है? कंट्रोलिंग आना ही आना है। तो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग। कि भाई आपने किसी को हायर किया है तो आप ये भी तो देखोगे कि आप की मतलब आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो अपनी ड्यूटीज़ डिलीवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या की जाती हैं? परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के अंदर आती हैं। देन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, अगर किसी को कोई डिस्प्यूट है या कोई प्रॉब्लम है, कोई डिससेटिस्फैक्शन है, तो उसको दूर करने की कोशिश की जाती है। एंड कम्युनिकेटिंग विद ऑल एम्प्लॉयज़ एट ऑल लेवल्स, और हर लेवल के हर एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे लेवल्स का मीन्स बात हो रही है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की, जिसमें आपके टॉप लेवल आता है, मिडिल लेवल आता है, लोअर लेवल आता है। और तीनों लेवल्स पे एम्प्लॉयज़ को मैनेज किया जाता है, उनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया जाता है। नाउ दिस इज अ कंप्लीट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस। यही आपका कंप्लीट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस है। स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स को क्या किया जाता है? मैनेज किया जाता है। Okay, move further. HRM is the field of management which plans, organizes, controls and functions of procurement, development, maintenance and utilization of workforce so that, ठीक है, क्या कहने का मतलब है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक
फील्ड है मैनेजमेंट की ही। भाई मैनेजमेंट आप सब लोग पढ़ चुके हो, तो मैनेजमेंट आप सब लोग जानते हो कि क्या होता है। अब उसी में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी उसी के अंदर आता है। अब लाइक आप प्रोडक्शन के काम को मैनेज कर रहे हो, दिस ऑल्सो कम्स अंडर मैनेजमेंट। आप ऑपरेशन के काम को मैनेज कर रहे हो, विच इज ऑल्सो कम्स अंडर मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जो अपने अंदर पूरी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को मैनेज करके रखता है। तो वैसे ही सेम एज ह्यूमन रिसोर्स भी आता है उसी में। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी क्या है, एक पार्ट है किसका, मैनेजमेंट का। और अभी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैनेजमेंट के फंक्शंस कौन से होते हैं, कौन कौन से फंक्शन होते हैं, प्लानिंग होता है, देन ऑर्गेनाइजिंग होता है, देन उसके बाद स्टाफिंग होता है, देन डायरेक्टिंग होता है एंड कंट्रोलिंग होता है। तो जाहिर सी बात है जब ये मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं तो जहाँ पे भी मैनेजमेंट वर्ड इंक्लूड होगा या यूज होगा वहाँ पे ये सारे फंक्शंस अपने आप आ जाएंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ फील्ड ऑफ मैनेजमेंट विद प्लान्स, जिसमें आप प्लान करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, कंट्रोल करते हो functions of procurement, development, maintenance and utilization of workforce, जिसमें आप प्लान किसके लिए करोगे, ह्यूमन रिसोर्स के अकॉर्डिंग प्लान करोगे, उनको कैसे हायर करना है, कैसे उनको ट्रेनिंग देनी है, इन सब चीज़ों को प्लान करोगे। फिर आप ऑर्गेनाइज करोगे ह्यूमन रिसोर्स को कि भाई कौन सा एम्प्लॉई कौन सी जॉब को परफॉर्म करेगा। अब सिंपल सी बात है, फॉर एग्जांपल आप ऐसे देखो, अगर कोई कंप्यूटर साइंस की स्किल्स के साथ एम्प्लॉय हायर किया जाता है तो जाहिर सी बात है ना, उसको उसी डिपार्टमेंट में वैकेंसी पे मतलब वर्क ऑफर की जाएगी, उसको वर्क डेलीगेट किया जाएगा कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। तभी तो होगा ना कि राइट पर्सन एट द राइट जॉब। तो वही चीज़ ऑर्गेनाइज करनी है, फिर उनको कंट्रोल करना है, और यही सारे फंक्शंस जो है आपको क्या करने हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो भी आपका ह्यूमन रिसोर्स है, या वर्कफोर्स भी कहा जाता है बेटा, वर्कफोर्स इज नॉट अ न्यू वर्ड। आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को वर्क फोर्स के नाम से भी एक बोल सकते हो कि आपकी काम करने वाले जो लोग हैं उनको आप वर्क फोर्स भी बोलते हो। तो उन्हीं लोगों को मैनेज करना। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है हायर करना, ठीक है, उनको प्रोक्योर करना, उनको डेवलप करना, उनको मेंटेन करना और उनको यूटिलाइज करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन उनसे इफेक्टिवली वर्क करवा सके। क्लियर है इतना? एक छोटी सी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्लिपो इज अ राइटर, सो अकॉर्डिंग टू फ्लिपो HRM इज द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज टू द एंड दैट इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोसाइटियल ऑब्जेक्टिव्स आर accomplished। सेम डेफिनेशन है जो अभी हमने ऊपर पढ़ी थी, बस इन्होंने थोड़ी सी दो लाइन्स इसमें और ऐड कर दी हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ प्लानिंग, ये एक प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है। किसके लिए प्लान करना है, किसको ऑर्गेनाइज करना है, किसको डायरेक्ट करना है, किसको कंट्रोल करना है, ह्यूमन रिसोर्स को। ओके, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में ये सारी चीज़ें करनी है। ह्यूमन रिसोर्स को हायर करना है, उसके बाद उनके डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, कंपनसेशन स्ट्रैटेजीज बनानी है, सैलरी वेजेस डिसाइड करना है, मेंटेनेंस देखना है उनका, और उसके बाद क्या करना है, ये एक्टिविटी को एंड करना है ताकि इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स आर अकम्प्लिश्ड। और ये एक्टिविटी तब तक चलती रहती है जब तक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स ना अचीव हो जाएं, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स ना अचीव हो जाएं, साथ ही साथ आपके सोसाइटी के भी ऑब्जेक्टिव्स को हमको लेके चलना होता है, क्योंकि हम एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं तो वी कैन नॉट मतलब साइड नहीं कर सकते हम अपनी सोसाइटी को, ठीक है। तो सोसाइटी के बेनिफिट को देखते हुए सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को कैसे फुलफिल किया जाए, यही सारी प्रोसेस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कंटिन्यूएशन में चलती रहती है, ऐसा कहना था आपका फ्लिपो का। ओके, सो आई थिंक अभी आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। आगे भी हम इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे एंड देन फर्दर हम आपके इसके नेचर, स्कोप, इन सब इम्पॉर्टेंस, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो आगे के कोर्स को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।